Join commands are used to retrieve data from multiple tables by identifying the tables in the from clause and establishing relationships between them. जो from clause होता है इस from clause में जिन tables का नाम बताया जाता है ये वो tables होते हैं जिस पर join operation ने चलना होता है। और ये जो टेबल्स होते हैं इनमें किन कॉलम्स पर जॉइन ऑपरेशन ने चलना होता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये वेयर क्लॉज में प्रेडिकेट में बताया जाता है। इससे वाज़ा होता है कि आपने किन टेबल्स पर जॉइन ऑपरेशन करना है और किन कॉलम्स पर करना है। Joins can be expensive. Different join algorithms and techniques have been developed to optimize performance. The simplest and most basic join algorithm is the nested loop join, which is applicable in all cases but it has poor performance. Other faster join algorithms include sort merge, hash-based, and index-based algorithms. 28.1 About nested loop join. The nested loop join is a method of joining two tables that is typically used in small-scale online transaction processing (OLTP) environments. However, it is not suitable for very large databases (VLDB) or decision support systems (DSS) due to its limitations. Nested loop join is useful when joining small sets of data. Join techniques commonly used in VLDB and DSS environments. Nested loop join OLTP environments में इस्तेमाल किया जाता है। ये उस वक्त अच्छा काम करता है जिस वक्त टेबल का साइज छोटा होता है और उसमें से आपने थोड़ा सा डेटा निकालना हो। इसके बरअक्स जब आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में क्यूरी को रन करते हैं तो इस एनवायरनमेंट में टेबल भी बहुत बड़ा होता है और उससे जो डेटा रिट्रीव किया जाता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में नेस्टेड लूप जॉइन ऑपरेशन सही से काम नहीं करता। 28.2 Nested loop join. Code. Nested loop join is a method used by databases to combine data from two tables based on a condition. The join process involves looping through one table, the outer table, and comparing its rows with the rows in the other table, the inner table, to find matching rows. If there are rows in the outer table and s rows in the inner table, then the total time taken for the nested loop join is ORS. The database optimizer decides which table should be the outer table based on the available indexes. If an index can be used to locate the rows, it is used, otherwise a full table scan is performed. If the inner table has a useful index, it can reduce the I/O costs. The process of nested loop join is repeated until all the matching rows are found. This process can be time-consuming and may result in a large number of I/O operations. Nested loop join. Order of tables. If the outer loop executes R times and the inner loop executes S times, then the time complexity will be ORS. The time complexity should be independent of the order of tables i.e. ORS is same as OSR. Time complexity टेबल के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। मुसला अगर एक लूप को एग्जीक्यूट होने में R टाइम लगता है और इसी तरह से जो लूप आउटर लूप के अंदर है उसको एग्जीक्यूट होने में S टाइम लगता है, तो इन दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी ORS होगी। लेकिन अगर आप इन दोनों का ऑर्डर तब्दील भी कर सकते हैं, यानी जो लूप अंदर है उसे बाहर ले जाते हैं, जो बाहर है उसे अंदर ले जाते हैं, तो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। The order of tables used in a join does not affect the number of matching rows returned. ऑप्टिमाइजर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा टेबल आउटर लूप में इस्तेमाल और कौन सा टेबल इनर टेबल में इस्तेमाल होगा। जब हम OLTP एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें छोटे छोटे टेबल्स होते हैं। वो सारे के सारे टेबल्स मेन मेमोरी में आ जाते हैं, तो जब आपके टेबल्स मेन मेमोरी में आ जाते हैं तो फिर आप उनके ऑर्डर को जैसे मर्जी तब्दील करते रहीं, उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। नेस्टेड लूप जॉइन वेरिएंट्स। 1.
नाइव नेस्टेड लूप जॉइन ये वो जॉइन टेक्निक है जिसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। ना ही इनर टेबल पर इंडेक्सिंग होती है ना ही आउटर टेबल पर इंडेक्सिंग होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको टेबल्स को स्कैन करना पड़ेगा। 2. इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन ये ऐसा नेस्टेड लूप जॉइन है जिसमें इंडेक्सेस बनी हुई होती हैं। 2. टेम्पररी इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन इस वेरिएंट में टेम्पररी इंडेक्सिंग होती है, यानी जिस टाइम आपने जॉइन चलाना होता है उस वक्त इंडेक्सिंग की जाती है और जिस वक्त आप जॉइन चला रहे होते उस वक्त तक इंडेक्सिंग ड्रॉप कर दी जाती है। 28.4 सॉर्ट मर्ज जॉइन जॉइन टेबल्स टू बी सॉर्टेड एज पर वेयर क्लॉज ऑफ द जॉइन प्रेडिकेट। जिन टेबल्स को जॉइन करना है वो टेबल्स उन कॉलम्स पर जो कि वेयर क्लॉज में आते थे उनको सॉर्टेड होना चाहिए। क्वेरी ऑप्टिमाइजेस स्कैन्स फॉर क्लस्टर इंडेक्स इफ एग्जिस्ट्स परफॉर्म्स जॉइन। जॉइन परफॉर्म करने से पहले क्वेरी ऑप्टिमाइज ये देखता है कि क्या टेबल उन कॉलम्स पर सॉर्टेड है जो कि वेयर क्लॉज में इस्तेमाल हुए हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंडेक्स। टेबल्स आर सॉर्टेड ऑन द कॉलम्स एज पर वेयर क्लॉज। अगर कॉलम्स सॉर्टेड नहीं है तो जाहिर है ऐसे में जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में ऑप्टिमाइजर टेबल्स को सॉर्ट करेगा। If multiple equalities in where clause. Some merge columns used. The sort merge join process just described works as follows. Sorting join का प्रोसेस merge sort से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। Sort table underscore A and table underscore B on the join column in ascending order। जब आप दोनों टेबल्स को सॉर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप टेबल ए में से पहली रो उठते हैं और टेबल बी की तमाम राउज के साथ आप टेबल ए को स्कैन करते जाएंगे। आप टेबल ए का टपल टेबल बी के टपल से छोटा रहेगा। आप टेबल बी से टपल्स को स्कैन करते रहेंगे। जैसे ही टेबल बी में टपल्स बड़ी हो जाएंगी तो आप रुक जाएंगे। उसी तरह आप टेबल बी में से भी एक रो को उठाएंगे और उसे टेबल ए की टपल्स के साथ कंपेयर करेंगे और जहां पर टपल बी बड़ी हो जाएगी टपल ए से तो आप वहां पर रुक जाएंगे। अब आप उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर जिन राउस को या टपल्स को आपने जॉइन करना था वो वहां पर मौजूद है या नहीं है। अगर दोनों राउज इक्वल हो चुकी हैं ऑल्ट्रेशन के बाद तो वो राउज मौजूद है वहां पर तो जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जब जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो आप पॉइंटर्स को अपडेट करेंगे और उसी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर देंगे। कॉस्ट M log M jumma N log N jumma M jumma N। The cost of scanning is M jumma N, could be Mn, very unlikely. Sort merge join. Note: very fast। अगर आपके टेबल्स में मौजूद कॉलम्स सॉर्टेड होंगे तो ऐसे में सॉर्ट मर्ज जॉइन बहुत तेज चलता है। Sorting can be expensive। Sorting ऑपरेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। अगर कंटेंट बार बार चेंज हो रहा है और रेगुलर तब्दील हो रहा है तब हर बार टेबल्स को रिजॉर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। प्रीसॉर्टेड डेटा कैन बी obtained फ्रॉम एग्जिस्टिंग बी ट्री। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको टपल्स पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में मिलती हैं और ये सॉर्ट कब मिलती हैं जब आपने बी ट्री इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बी ट्री में जब हम नोड्स को स्कैन करते हैं तो वो सॉर्टेड होते हैं, तो ऐसे में सॉर्ट मर्ज टेक्निक बहुत ही फास्ट काम करेगी। 28.5 hash based join working। Hash joins are a method for combining large sets of data, and they work by creating a hash table in the computer's memory based on a key that's used to join the tables। जिस टेबल को आप पहले हाश करते हैं उसको बिल्ड ऑपरेशन कहा जाता है और जिस टेबल को आप बाद में हाश करते हैं उसे प्रोब ऑपरेशन कहा जाता है। The optimizer decides which table to hash first, build operation, based on which one is smaller. Then, the larger table is scanned and the hash table is used to find the matching rows. Collisions, when two different rows have the same hash key, are actually helpful for identifying matching rows.
This method is best used for joining large amounts of data or when a large portion of the table needs to be joined. It's also faster when the smaller table can't fit in the computer's memory, as partitioning the smaller table can slow down performance. Hash-based join, partition skew can become a problem. यहाँ स्क्यू का मतलब यह है कि किसी बकेट में ज्यादा वैल्यूज चली जाएं और किसी बकेट में कम वैल्यूज चली जाएं। हाशिंग में ये प्रॉब्लम रहती है। Solution: Make available other hash functions to be chosen by the optimizer that better distribute the input. ऑप्टिमाइजर के पास मजीद दूसरे हाश फंक्शंस होने चाहिए कि ऑप्टिमाइजर उन हाश फंक्शंस में से चूज कर सके। Hash-based join, intrinsic skew. Intrinsic skew can become a problem for hash, as well as sort merge join. The skew is in data, not due to hash function.